Okay, let's we start with the new topic from the chapter number 5. But before proceeding toward the new topic of the chapter number 5, that is the codominance, speedily we revise the previous one. We have studied the Mendel's law of segregation, very important law. We know that the alleles always present in pair for height capital T or the heterozygous capital T small t or homozygous recessive small t small t. But when gametes are formed, these get separate, either dominant or recessive. Not both, only one, single one. This is called a lobed segregation. Second thing, very important, we know that for the every character two traits are possible. For there, one trait is dominant over the second one. As for example, in plant, pea plant, for the height of the stem, for height and dwarf is here one is dominant, second we are writing recessive. For the same thing, same plant, for the seeds, two character dominant and is it means that when yellow and green both alleles are present together in any plant, they will produce yellow seeds. Shape round is dominant and wrinkled one means when in any plant for the shape of the seed round alleles and wrinkled alleles both genes are present, effectiveness will be of only the round. The pod pod 2 same color, here green is dominant and yellow is recessive. Shape of the pod, that swollen one inflated is the dominant and beaded. Beaded means like this. For every seed you can count how many are there. Is a recessive. Second color. For the color, pink color is dominant, white color is recessive. For the flower position, axillary means if it is present in axillary bulb development is the dominant, terminal is recessive. Here other is there for the phenotype. Phenotype means what we resemble, what we see. That what we see during the F2 because F only dominant will appear. For the phenotype, for the 3 it is the dominant, 1 is means 25% recessive. When we go for the genotype, for the genotype 1 is to 2 is to 1 is there. For 1 it is a homozygous dominant, for 2 it is a heterozygous, 1 is homozygous recessive. Same way here we have studied for the means snapdragon dog flower, that it has the red color flower and white color flower.
When these are crossed, F1 does not have the red color or the white color, but average both mix, that is the pink color. Yes, I have made some mistake. Yes, for the these Mendel's law in pea plant, dominant and white is recessive. By mistake, I mentioned that dog flowers color here. Sorry. So look here, red and white, it will develop pink. When this pink is cross in between same, means F1 cross with the F1, F2 has the what happen? Red flower, pink flower, and white flower. It is always 1 is to 2 is to 1. Their phenotype is 1 is to 2 is to 1. Their genotype for RR, RW also 1 is to 2 is to 1. Look, this we have studied. This is called as a Mendel's dominance law. This is known as a incomplete dominance. Why it is incomplete in that? F1 giving pink color, not completely red color is dominant over white, or white color is completely dominant over red. Both mix is possible, so it is called incomplete dominant. Now here we are going to study one new topic. That topic is known as the dominant. Today we will discuss two topics. First one and second one little bit different. What is the codominant? For that we first understand where it is possible. It is seen in human blood group. First we should aware of what is the blood group. So look, group, our RBC. Our RBC has on its outer plasma membrane. Some polysaccharides. They have the polysaccharides. As we have under, plasma membrane is made up of the bilayer lipid. Along with this bilayer lipid, there are some protein molecules are present. Some are totally inside, some are embedded inside, and some are superficially. Along this is given in our theory, but in figure they have given this. Polysaccharide chains are also present along with this one. This polysaccharide chain in our RBC, the outer surface of our RBC, they are of the two type, which slightly different. One is called as the A type, second one is called as the B type. So those human has on their plasma membrane A type polysaccharide chain, their blood group is A. Those who has the B type polysaccharide chain, their blood group is B. So look here, blood group. Blood group is totally depend on the which type of the polysaccharide chain is there. If it is a A type, the blood group is A. If it is a B type, it is a blood group B. The question arises कि सर फिर वो O क्या होता है? So there is some where plasma membrane of RBC does not possess any kind of polysaccharide chain. If that polysaccharide chain is absent, what does it mean? It is 0. So when it is 0 is written, along with this alphabet A and B, it is read as a O. So blood group A, B and O, general form. So our blood group
is not called something else, but it is called ABO. ABO. Number 2, क्वेश्चन एराइज के सर हमने तो बी होता हैगा, यस होता है, बोलो क्या होता है उसमें, दोज पर्सन हैज polysaccharide A as well as polysaccharide B, both are present together. If both are the present at a time together, it is called the blood group AB. समझ में आता हैगा? So look, these are the blood group. Now the question arise, चलो सर इतना तो समझ लिया, बट ये ब्लड ग्रुप बनता कैसे है? So look, for every character, this is also one character. For every character LL pair means genes are present. For my voice, I have genes. For my height, I have my own genes. And genes are present in pair. तो देखो, A के अंदर polysaccharide है, means it synthesize होता है. B also has the polysaccharide, means it synthesize. But O does not have, means O cannot synthesize polysaccharide chain. What does this mean? This means that एक इंड्यूस करता है सिंथेसिस ने, दूसरा इनहिबिट करता है. जो इंड्यूस करता है वो डोमिनेंट पाया गया. कैसा अपीयर हुआ वो? डोमिनेंट. तो ग्रुप ए, तो बोलो उसका जीन कंपोजिशन कैसा रहेगा? तो बिकॉज इट सिंथेसाइज, इंडक्शन होता है, इंड्यूस होता है. बोलो ब्लड सिंथेसाइज होता है तो कैपिटल आई. ब्लड ग्रुप हो उसमें नहीं बनता, डोमिनेंट सॉरी रिसेसिव, स्मॉल आई, इनहिबिट हो जाता है. चलो, बट एज वी नो these genes are present in pairs, so we can write like, but as we know that this capital I which induce is the dominant, so here one more possibility is there. बोलो यहां पे भी एक और पॉसिबिलिटी आती है, यहां पे नहीं आएगी, बिकॉज रेसेसिव्स आर ओनली होमोजाइगस. हाँ, डोमिनेंट, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस दोनों होता है. The question arises among here, blood group A and B. Sir, A and B both has the genotype is same, then why they are different? The reason is that the A has the capital I which induce the synthesis, but is synthesize capital A. A type का synthesis induce करता है. समझ में आता है? और बोलो यहाँ बी में क्या आएगा? उसमें भी वही सिंथेसिस इंड्यूस करता है. सिंथेसिस करने वाला डोमिनेंट है, बट वो जो डोमिनेंट जो सिंथेसिस कराएगा वो बी टाइप का सिंथेसिस कराएगा. समझो, सिंथेसिस कराता है वो डोमिनेंट, बट डोमिनेंट ये कैसा है? वो एक ऐसा सिंथेसिस कराता है ए टाइप को, दूसरा क्या सिंथेसिस कराता है? बी टाइप को. न दोनों, ए टाइप वाला भी सिंथेसिस कराने वाला, बी टाइप वाला भी, दोनों जो इनहिबिट करता है, नहीं कराता है, उसके ऊपर डोमिनेंट है. तो क्वेश्चन एराइज तो भी कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है. पेयर इज प्रेजेंट, वन इज द ए टाइप इंड्यूसिंग, सेकंड ए टाइप वाला ए को बनाता है, बी टाइप वाला बी को बनाता है. जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ए टाइप ने बी टाइप दोनों प्रेजेंट होते हैं. This is the perfect example of the codominance. Not incomplete. Incomplete में दोनों का मिक्स बन जाता है. पिंक कलर, यहां पे ए भी बनता है और बी भी बनता है, दोनों एक साथ में इंड्यूस करते, मीन्स कोडोमिनेंस. समझ में आता है इधर? सो लुक हियर, व्हाट इज हियर? हियर दिस इज द ग्रुप ए, दिस इज द ब्लड ग्रुप बी, दिस इज द ब्लड ग्रुप ओ. This is also indicate study of the multiple alleles. बोलो कितने alleles है? मेन alleles देखेंगे तो बोलो 3 है. कौन से? IA, IB and small I. 3 alleles are there, but 6 pairs are possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Look, 6 are possible, but anybody may have, they have only one.
कोई के अंदर भी एक ही पॉसिबिलिटी होगी, ये 6 में से ए है तो आइदर ये टाइप होगा या तो ये टाइप होगा, दोनों नहीं होगा, ये या ये। बी है तो ये होगा या ये होगा, दोनों नहीं होगा। ओ है तो खाली यही होगा। ए बी है तो ओनली दिस टाइप इज पॉसिबल, दिस पेयर इज पॉसिबल। So look, ABO blood group, they totally depend on the outer plasma membrane as which kind of polysaccharide is there. If it is a A type or the B type. For the synthesis of A type A, gene is IA. For the synthesis of B type, gene is IB. If it is a O, then small I, it recessive, it stop the synthesis. Polysaccharide is absent. And AB, both are the present. ABO blood group, 3 alleles, 6 possibilities. बोलो यस, जेनोटाइप कितना बनता है? जेनोटाइप 6, 1 2 3 4 5 6। फेनोटाइप कितना बनता है? 4, 1 2 3 4। एलेल्स कितने टाइप के? 3 टाइप के। अब इसमें से हम फ्रॉम हियर, हमारी बुक में एक चार्ट दिया है, वो टेबल हम पहले स्टडी करेंगे। वो टेबल में क्या आएगा? पेरेंट 1 कैसे पर्टिकुलर वो ब्लड ग्रुप बनेगा? बोलो पेरेंट 1 मीन्स आइदर मदर फादर। पेरेंट सेकंड मीन्स बोलो यहाँ पे मदर है तो ये फादर, ये फादर है तो ये मदर, और बोलो ये उसका ऑफस्प्रिंग मीन्स तो क्या होगा? बोलो आई ए टाइप एक में से आया, दूसरे के गैमेट में से आई, बोलो आएगा तो बोलो क्या हुआ? ऑफस्प्रिंग बनेगा आई ए। बोलो ऐसे ही हम सोचते, बोलो कोई एक के स्मॉल आई, तो बोलो यहाँ पे क्या बनेगा? आई ए स्मॉल आई। बोलो एक लेकर आया आई बी, तो बोलो क्या बनेगा? जाइगोट से ही आई बी मीन्स ब्लड ग्रुप बी। बोलो एक के उसमें से आया आई बी, तो बोलो जाइगोट बनेगा आई बी स्मॉल आई। बोलो यहाँ पे अपने क्या हुआ? एक में से आई ए, दूसरे में से आया आई बी, तो बोलो यहाँ पे बनेगा आई ए आई बी। बोलो यहाँ पर क्या हुआ? बोलो एक पेरेंट में से आया स्मॉल आई, दूसरे पेरेंट में से आया स्मॉल आई, तो यहाँ पे बनेगा स्मॉल आई। मीन्स बोलो यहाँ पे हम अगर जो ब्लड ग्रुप यहाँ पे वो साइड पे दिखेगा नहीं, इसके लिए बोलो यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिखता हूं मैं। बोलो ये दोनों के अंदर ब्लड ग्रुप ए बन सकता है, पेरेंट्स में से कैसे कौन सा आया? इधर ब्लड ग्रुप बी बन सकता है, ए बी होगा और यहाँ पे ओ होगा। Look, this is the codominant. Look, depending on this codominant, solve some puzzle type question. बोलो इतना समझ में आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होगा तो वो पजल टाइप क्वेश्चन अब जो हम कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। लुक, द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज ओ, so blood group among their next generation, their children। बोलो इसमें क्या होगा? तो बोलो पी जनरेशन मदर ओ कब रहेगा? रिसेसिव आई मीन्स ओ स्मॉल आई। बोलो फादर ए बी कब बनेगा? आई बी। पेड़ छोटी होगी, सेपरेट होगी, तो बोलो हाफ विल बी स्मॉल आई। सो मदर में से जाइगोट तो भी बनेगा। अब यहां से एक
स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, सर आप ही ने तो बोला था कि एक तो एक्स एक्स टाइप बनता है। अरे वो 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम है, हम वो 23rd पेयर को कंसीडर नहीं कर रहे। अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप। फर्स्ट पेयर टू 22nd पेयर अलग अलग फेनोटाइप के उसके ऊपर जीन्स रहते। एवरी पेयर में से एक एक आता है, यानी यहां भी एक्स एक्स तो आया होगा, बट वी आर नॉट कंसीडरिंग इट। अरे फॉर वॉइस, वॉइस के लिए भी पेयर में रहेगा। तो आई डोंट नो, जस्ट समझने के लिए, वॉइस के लिए फिफ्थ पेयर में है, तो फिफ्थ पेयर का एक इधर आया एक इधर आया, बट वी आर नॉट कंसीडरिंग इट। 23rd पेयर का एक एक्स इधर आया, हम वो नहीं कंसीडर कर रहे हैं। स्किन कलर 9th क्रोमोसोम एंड 12 13 16 जो भी है, वो एक इधर आया एक इधर आया, वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वी आर कंसीडरिंग ओनली द ब्लड ग्रुप रिलेटेड। दूसरे भी सब प्रेजेंट है, बट उसको हम अभी ध्यान में नहीं लेते हैंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सो लुक हियर, बोथ एग्स आर हैविंग द स्मॉल आई, सो आई एम राइटिंग ओनली वन, बिकॉज कोई भी जाएगा वो ऑफस्प्रिंग को स्मॉल आई रिसेसिव आई ही देगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ कोई एक्स वाला होगा कोई वाई वाला, ऐसा भी नहीं कि एक्स वाला आई ए के साथ में ही होएगा ना वाई वाला आई बी में होएगा। अरे एक्स वाला यहाँ पे भी कितने कितने एक्स वाले आई ए टाइप के होंगे, कितने एक्स वाले आई बी टाइप के होंगे, कितने वाई वाले आई ए टाइप के, कितने वाई वाले आई बी टाइप के। बिकॉज इस रेंडमली सब सेपरेट होएगा, पेयर में से कोई भी एक आएगा, तो आई ए को भी एक्स टाइप मिल सकता है, आई बी को भी मिल सकता है, बट वो सब अभी हम नहीं देखेंगे। अभी तो हम देखेंगे। So look here, when F1 generation is formed from here, these unite these two form. So IA small I zygote means blood group offspring will be A. When this egg form, this is the IB small I. So zygote will be blood group. समझ में आता है? एक और एग्जांपल हम लेते हैं, बोलो मदर ए टाइप ए, फादर ओ टाइप ए। बोलो ये ऐसा जो हम लेंगे तो बोलो कुछ भी ले सकते थे, चलो ये मदर को ए ओ टाइप, फादर को ए टाइप। अब बोलो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ से ओ यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पर लिखा, ऐसा क्यों गया? अरे स्टूडेंट कितनी बार आते, सर आपने मदर ओ टाइप कराया ना फादर ए टाइप कराया। सर सपोज के मदर ए टाइप है और फादर ओ टाइप है, अरे मैंने कहा इधर लिखोगे उधर लिखो, यहाँ से जनरेशन को तो वही सेपरेट होके मिलने का है। बोलो क्या होगा, तो बोलो मदर, मदर स्मॉल आई रहेगी, फादर दो से ए हो सकता है, आई ए आई स्मॉल आई मीन्स ये पहले ये हेट्रोजाइगस है एंड होमोजाइगस है। अब हमको ये नहीं बताया है कि ए टाइप कौन सा है, ये है कि ये है। सो व्हाट वी विल डू, हम दोनों के साथ में आंसर प्रिपेयर करेंगे। दो चार्ट बनेंगे, बोलो पहला चार्ट पी जनरेशन मदर ओ मीन स्मॉल आई, फादर को ये फर्स्ट टाइप का हम ऑप्शन, अगर जो ऐसा ऑप्शन है ऐसा प्रेजेंट है फादर, तो क्या बनेगा। दूसरे में बोलो क्या करने का, पी जनरेशन स्मॉल आई और ये आई ए स्मॉल आई। बोलो यहाँ पे क्या होगा, गेमिट्स। बोलो कौन सा गेमिट्स बनेगा, स्मॉल आई सेपरेट बाय मीन स्मॉल आई बनेगा। बोलो यहाँ पे गेमिट्स कौन से बनेंगे, बोलो बोलो कौन से बनेंगे, यहाँ पे आई ए टाइप ही बनेगा, क्योंकि बहुत सेम है। बोलो दोनों सेम है तो बोलो क्या होगा, कोई एक ही हमें टाइप बनेगा। तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, F1 जनरेशन, बोलो F1 जनरेशन आई ए स्मॉल आई मीन्स जनरेशन को क्या मिलेगा, जनरेशन को ए ब्लड ग्रुप मिलेगा। बोलो यहाँ पे स्मॉल आई वाला भी होगा स्मॉल आई वाला भी होगा। बोलो F1 जनरेशन, बोलो कौन सा बनेगा ब्लड ग्रुप,
ए स्मॉल, ये ब्लड ग्रुप बनेगा। अगर जो ये दोनों का फ्यूजन हो गया जाइगोट बना तो स्मॉल आई मीन्स इधर ए की पॉसिबिलिटी मीन्स अगर जो मदर फादर ये टाइप के ओ ने ए है तो उनके जो भी नेक्स्ट जनरेशन है वो ए टाइप रहेगा या तो ओ, दोनों नहीं, कोई कोई भी टाइप एक हो सकता है या और अगर जो ये टाइप का ए तो बोलो ए से तुम बी टाइप भी फाइंड कर सकते हो कि फादर बी टाइप है तो बोलो वो भी दो टाइप करेगा, आई बी स्मॉल आई। घर पे बना लेने का, अपने आप से प्रिपेयर करो कि मदर स्मॉल आई, फादर आई बी, तो यहाँ पे आई बी, तो यहाँ पे आई बी स्मॉल आई। बोलो यहाँ पे मदर हो, फादर आई बी स्मॉल आई, तो ये उसके गेमिट्स, तो यहाँ पे आई बी स्मॉल आई, बी एन ओ। ऐसा बोलो एक और चार्ट हम लेते, बोलो कौन सा लेंगे? मदर ए फादर बी, बोलो मदर ए फादर बी, हमको पता नहीं कि कौन क्या है, तो बोलो मदर ए दो टाइप से पॉसिबल है, आई ए मीन्स होमोजाइगस है एंड आई ए स्मॉल आई हेट्रोजाइगस है। फादर बी भी दो टाइप से पॉसिबल है, होमोजाइगस भी आई बी एन आई बी स्मॉल आई। हमको बताया नहीं है मिस, हमको सब लेने का, तो बोलो यहाँ पे 4 चार्ट बनेंगे। अगर जो मदर ये है और फादर ये है, मदर ये है और फादर ये है, कोई भी हो सकता है, हमको बताया नहीं है। फिर मदर ये है और फादर ये है, मदर ये है और फादर ये मीन्स फर्स्ट फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, सेकंड सेकंड। एक स्टूडेंट आया था, बोले कि सर आपने वो तो गेमिट्स के लिए किया, मैंने गेमिट्स किया किसी के लिए भी, जब मोर देन वन ऐसा है तो फर्स्ट 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 सेकंड ये सब नहीं ले लो। बोलो यहाँ फर्स्ट, फर्स्ट चार्ट फर्स्ट फर्स्ट आई ए आई बी। चलो सेकंड चार्ट, देखो फर्स्ट फर्स्ट हुआ, फर्स्ट सेकंड आई ए आई बी स्मॉल आई। चलो थर्ड चार्ट, सेकंड फर्स्ट आई ए स्मॉल आई बी। बोलो फोर्थ चार्ट, सेकंड सेकंड, बोलो क्या? आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, वही ना? बोलो यहाँ पे गेमिट्स एक ही तरह का बनेगा, आई ए यहां से आई बी, तो बोलो जाइगोट और फिर फ्यूचर में ब्लड ग्रुप आई बी मीन्स ए बी। अगर जो कपल ऐसा आएगा मदर फादर, तो बोलो यहां से गैमेट्स, बोलो यहाँ के गैमेट्स क्या? आई ए सेपरेट मीन्स आई ए एक ही बार, बोलो यहाँ पे आई बी स्मॉल आई। बोलो फर्स्ट फर्स्ट, बोलो उसके F1 में क्या बनेगा? फर्स्ट फर्स्ट, यहाँ गैमेट्स का फर्स्ट 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 सेकंड लेंगे, ये दोनों का आया तो ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है। अगर जो ये दोनों का फ्यूजन हो गया होगा तो ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस ए हो सकता है। बोलो यहां से हम गैमेट्स लेंगे, तो बोलो आई ए स्मॉल आई ए तो एक दो टाइप के बनेंगे, आई ए एन स्मॉल आई। स्पर्म तो आई बी मीन्स आई बी टाइप ही बनेगा। तो ये स्पर्म ये जाइगोट का फ्यूजन, सॉरी ये स्पर्म और ये एक का फ्यूजन हुआ तो आई बी मीन्स ब्लड ग्रुप ए बी। चलो ये दोनों का फ्यूजन हुआ तो आई बी स्मॉल आई ब्लड ग्रुप बी है हेट्रोजाइगस बी। चलो यहाँ ये 4
दो अलग अलग दो टाइप के बनेंगे. As well as here sperm also are of the two type because IB and small I. अब बोलो यहाँ gametes two types are here, so what to do? First, second. But वो confusion, it develop confusion. So to avoid that confusion, what we will do? We will go up. बोलो यहाँ का जो gametes आता है IB small I, यहाँ के gametes आते हैं IA small I. बोलो फर्स्ट यानी फर्स्ट मीन्स ब्लड ग्रुप ए बी. फर्स्ट सेकंड आई ए स्मॉल आई. सेकंड फर्स्ट मीन्स आई बी स्मॉल आई. सेकंड स्मॉल आई. बोलो अगर जो ऐसा हुआ तो बोलो ब्लड ग्रुप ए बी आएगा, ब्लड ग्रुप बी आएगा, ब्लड ग्रुप ओ ये टाइप का आएगा, ब्लड ग्रुप ए ये टाइप का आएगा. आई थिंक इन नीट और गुजकेट इट वाज आज ये चार इस पे से कि अगर जो मदर ये टाइप है, फादर ये टाइप है, तो उसके जनरेशन में कौन सा नहीं होगा बोलो. तो बोलो ए बी तो आई है, आई बी ये एक ही है, मिस वो तो होगा ही. ओ स्मॉल आई तो ये भी होगा. बी टू पॉसिबिलिटीज आई बी स्मॉल आई. यहाँ पे कौन सा बना आई बी स्मॉल आई, यानी बी में आई बी नहीं होगा. ए टू पॉसिबिलिटीज आई ए स्मॉल आई, तो यहाँ पे आई ए स्मॉल आई है, मीन्स बोलो ए कौन सा नहीं हो सकता है आई ए. सो दिस इज कोडोमिनेंस. नाउ लुक हियर. Up to now we have one allele has one effect, one phenotypic effect, one character is developed by one allele. There are numbers of allele, numbers of genes are there, which is their effect on the more than one character. For the more than one character, एक ही एलेल एक से ज्यादा कैरेक्टर पे इफेक्ट करेगा. अभी तक हमने जो लिया तो बोलो ये आई ये मात्र ओनली ब्लड ग्रुप पे इफेक्ट करता है, स्मॉल आई भी ब्लड ग्रुप पे इफेक्ट करता है, स्मॉल आई ओनली किस पे इफेक्ट करता है ब्लड ग्रुप पे. बट देखो देर आर द सम पी प्लांट्स, in this pea plant they have the gene B, dominant B and recessive B. तो बोलो ये जीन हुआ जेनोटाइप, वो कैरेक्टर. तो ये जीन के कौन से कैरेक्टर, तो कैरेक्टर 1 सीड शेप, और बोलो कैरेक्टर 2 in these seeds starch are synthesized, means for the starch synthesis. बोलो ये दो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कौन से सीड के शेप को भी और सीड के अंदर जो स्टार्च कंटेन है उसको भी. मींस सिंगल एलेल हैज डबल इफेक्ट. अरे डबल क्या, आगे हम स्टडी करेंगे. सिंगल जीन इज नंबर्स ऑफ इफेक्ट. सो लुक हियर, ये कैसे होता है क्या हम थोड़ा समझेंगे, बरोबर देखना. जेनोटाइप, होमोजाइगस बी डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट रिसेसिव में डेफिनेटली डोमिनेंट का कैरेक्टर आएगा. देन होमोजाइगस रिसेसिव तो रिसेसिव कैरेक्टर ही आएगा. शेप ऑफ सीड, बोलो क्या आएगा शेप ऑफ सीड, कैपिटल बी राउंड शेप.
कैपिटल बी स्मॉल बी डोमिनेंट है, अभी हम मेंडल इतना डोमिनेंट है तो राउंड शेप, स्मॉल बी स्मॉल सी नॉट अनइवन सरफेस रिंकल्ड वन। चलो स्टार्च ग्रेन, बोलो इस ये भी इफेक्ट करता है, तो बोलो ये कैपिटल बी तो लार्ज शेप स्टार्च ग्रेन, स्मॉल बी स्मॉल जी वेरी स्मॉल लेस एक्टिव स्मॉल स्टार्च ग्रेन, कैपिटल बी स्मॉल बी तो बोलो डोमिनेंट है मीन्स लार्ज बनना चाहिए, नो इट इज अ एवरेज मिडल शेप। तो बोलो यहां से दो चीज कंफर्म हुई कि देर आर द सम एलेल्स विच हैज द मोर देन वन इफेक्ट। नंबर टू, यहां से देखो अब वही, अगर जो शेप ऑफ सीड है तो मेंडल को फॉलो करता है ने, अगर जो स्टार्च पे जब उसको स्टडी करते तो वो क्या आएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लार्ज शेप भी नहीं स्मॉल शेप भी नहीं। सो लुक वी गो फॉर अवर टेक्स्ट बुक्स, according to textbook, look on page number 77 topic number 5.2.2.2, till now we were discussing the cross where the F1 resemble either of the two parents, either of the two parents, कोई भी एक पेरेंट्स को जैसा दिखेगा, टॉल एंड ड्वार्फ तो खाली टॉल दिखेगा, वायोलेट फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर तो खाली वायोलेट आएगा, और वॉस इन बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखो सामने के पेज नंबर 76 पे पूरा वही इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, बोलो वो एट्रिनियम में क्या होता है, तो रेड एंड व्हाइट तो पिंक कलर, मींस वॉस इन बिटवीन, दोनों के बीच में का एवरेज। बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, अब हम कोडोमिनेंस आते जो हमारे ब्लड ग्रुप में हम ले गए, द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, बोलो दोनों पेरेंट्स को, वो हाँ पेरेंट्स एक में से क्या आया दूसरे में से क्या आया, ये ए बी में समझ में आता है, एक में से आई आया दूसरे में से आई बी आया, तो आई ए आई बी मीन्स ब्लड ग्रुप ए बी। A good example is different types of the red blood cells that determine ABO blood group, बोलो ये ब्लड ग्रुप को हमने क्या बोला है, ABO, ए टाइप बी टाइप ओ टाइप या ए बी कंबाइंड टाइप, ABO blood group. In human beings, ABO blood groups are the controlled by the gene I, बोलो जीन आई, अगर जो वो बनाता इंड्यूस करता तो कैपिटल, सॉरी कैपिटल ए एंड बी के लिए, अगर जो इनहिबिट करता है नहीं बनाता है तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड red blood cells has the sugar polymer that produce the from its surface sugar polysaccharide and kind of sugar is controlled by that gene, बोलो कौन सा काइंड बनेगा, तो ये आई ए होएगा तो ए टाइप बनाएगा, आई बी होगा तो ये बी टाइप बनाएगा, ने स्मॉल आई होगा तो नहीं बनाएगा। द जीन कैपिटल आई हैज द 3 एलेल्स, कैपिटल ए मीन्स आई ए, बोलो कौन से आई ए, आई बी या आई बी एंड स्मॉल आई। द एलेल्स आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस अ स्लाइट डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर, दोनों शुगर प्रोड्यूस करते पर थोड़ा डिफरेंट टाइप, while LS small I does not produce any sugar, small I कोई भी शुगर को प्रोड्यूस करता नहीं है। Because humans are diploid organism, each person possesses only any two of these three, बोलो 3 पॉसिबिलिटीज है ना हमने देखी, बोलो कौन सी, आई ए स्मॉल आई आई बी, तो पेयर बनेगी तो खाली दो की कोई बनेगी, या तो आई ए आई बी ये रही। In other words, the IA and small ir represent only IA express. Sorry, कहाँ? It does not produce any sugar because humans are diploid organism.
each person possesses any two of these three ILLs. IA and IB are completely dominant over small I, means recessive with small I. In the other words, capital IA and small I are present, only IA will be expressed because small I does not produce any sugar. IA और small I दोनों आ गए तो blood group A synthesize होएगा. Why? Sugar A is synthesized. And when IB and small I are present, only IB will be expressed. बोलो I स्मॉल आई दोनों आ जाएंगे. एक में से IB आया, एक पेरेंट में से, दूसरे पेरेंट में स्मॉल आई आया, तो IB means B synthesize. But when IA and IB both are the present together, they both express their own types of the sugar. बोलो दोनों आ गए तो दोनों खुद खुद का बना लेते हैं. Since there are the three different LS, there are 6 different combination. बोलो LS तो 3 ही होंगे. कौन से? कैपिटल IA, कैपिटल IB और स्मॉल I. LL 3 है but 6 combination है. 1 2 3 4 5 6. 3 LLs are that are possible. Saying therefore a total 6 different genotypes of human ABO blood types is present. How many phenotypes are possible? 4 type, A, B, AB and O. उसके बाद में जो चार्ट दिया इस पेज नंबर 77, ये ही अपने पूरा है टेबल. लुक पेज नंबर 78. Do you realize that the example A of ABO blood group also provides a good example of multiple LLs? बोलो multiple LLs. कितना सब? Multiple choice question MCQ. One question you have chance to select one from the 4. तो बोलो यहाँ 1 2 3 4 5 6. 6 possibilities are there, but we have only one. Means it is called as a multiple LLs. How you can see that there are the more than 2, that is the 3 LLs governing the same character. बोलो ऐसे हम देखने जाएंगे तो ये possibility 6 है, but ये पूरा कंट्रोल करते हैं IA, IB and small I. Since in the individual only 2 LLs can be present, multiple LLs can be found only when population studies are made. पूरा एक पूरा बहुत बड़ा population लेके उसका स्टडी करने पे आएगा तो फिर मल्टीपल LLs को समझ में आता है, नहीं तो समझ में आता नहीं है. वो आगे इकोलॉजी के टॉपिक में आएगा जब तुमको आइडिया आ जाएगा. चलो ओकेजनली या सिंगल, ये सेकंड टाइप. ये ओकेजनली या सिंगल जीन प्रोडक्ट मेनी प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट. बोलो क्या होता है? एक ही जीन मोर देन वन इफेक्ट. यहाँ पे हमने एक लिया है कैपिटल बी ग्रेन. For example, starch synthesized in pea seed is controlled by one gene. It has 2 LLs, capital B and small b. Starch is synthesized effectively in capital B, capital B. बोलो अगर जो कैपिटल बी है तो स्टार्च बरोबर बनेगा, मीन्स दैट लार्ज स्टार्च ग्रेन्यूल्स बनेंगे. Therefore, large starch grains are produced. In contrast, small b homozygous recessive have the lesser efficiency in starch synthesis and produce smaller starch grains. बोलो उसके contrast में small b is the less effective, the smaller starch grains are produced. After maturation of these seeds, capital B, seeds are round. बोलो क्या हुआ? ये कैपिटल बी लार्ज स्टार्च ग्रेन तो बनते, बस स्टील वो सीड का शेप कैसा बनता है? राउंड. एंड स्मॉल सीड्स आर रिंकल्ड. बोलो स्मॉल बी है तो स्मॉल स्टार्च ग्रेन तो बनते, बट बोलो स्टार्च सीड शेप कैसा रहता है? रिंकल्ड वन. हेट्रोजाइगर प्रोड्यूस राउंड सीड्स एन. So B seems to be dominant LL. बोलो हेट्रोजाइगस में देखेंगे तो राउंड सीड बना, तो हमको उस पे से B डोमिनेंट लगता है. हाँ शेप के लिए डोमिनेंट है, बट स्टार्च के लिए वो कौन सा आएगा? तो कोड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. Heterozygous produce round seeds and so B seems to be dominant LL, but the starch grains produced are of intermediate average
साइज इन, सो स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी सीड्स। बोलो, तो इस पे से ये नहीं समझने का कि ये राउंड बना तो ये इसमें भी लार्ज ही बनेगा। यहाँ इंटरमीडिएट एवरेज दोनों का मिलके एवरेज आया। देन फ्रॉम दिस सिंगल द एलन सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, इससे आगे का नेक्स्ट टाइम पे।